Good morning children, 11th science. Today I will solve some questions of exercise. So first question which I am going to solve, that is question number 1.7. Okay, from exercise. How much copper can be obtained from 100 gram of CuSO4? So first we need to calculate the molecular mass of CuSO4. It will be given in the question, but some common elements and their atomic mass as well as molecular mass you have to remember. Copper is 63.5 U, sulfur 32, oxygen 16. So molecular mass of copper sulfate will be 63.5 into 1, एक ही है, plus 32 into 1, sulfur is 1 only, plus oxygen 4 atoms are there, so 16 4 ja. So plus 32 plus 16 4 ja 64. So when you will calculate, it will become 63.5 plus 32 plus 64 is equal to 63.5 plus 32 plus 64 is equal to 159.5. 159.5. You okay? Molecular mass find कर लिया. Now we know that in, let me write, in 159.5 gram, ये molecular mass किस में find करेंगे? Gram. How much copper is there? 63.5 gram copper is there. 1 mole copper है, तो 63.5 gram copper is there. Therefore, in 100 gram, how much? So 100 multiplied by 63.5 divided by 159.5. When you will calculate, it will be 39.81 gram. बस simple है. इस तरह से data will be changed and the question will be asked to you. Second question which I am going to do here, that is question number 1.8. Determine the molecular formula of an oxide of iron in which mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1% दे रखा है, ठीक है. और molar mass of this oxide is also given 159.69 gram per mole. बेटा जिन बुक्स में ये नहीं दिया हुआ है, you please note it down. Okay, in old edition the molar mass is not given. Now yesterday only a few students inquired me कि टीचर इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं. So last time I had shown you, but again I am telling you how to do this type of question. सबसे easy method ये है, make the table. You can go by any method, but for me this is easiest. First column elements. तो कितने कौन से एलिमेंट है हमारे पास? आयरन एंड ऑक्सीजन. Then write their atomic mass. 58.85 is the mass. 56 भी हम इसको लिखते हैं, है ना? So 55.85 and oxygen is 16. Mass in gram. Now you can tell me, you easily understand that mass in gram, mass percent is given. तो परसेंट को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ग्राम में 69.9 ग्राम, 100 ग्राम में 30.1 ग्राम, है ना? परसेंट यानी 100. सो 100 ग्राम में इसको कन्वर्ट कर लिया हमने. 69.9% दिया था, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ग्राम में 69.9 ग्राम एंड दिस इज 30.1 ग्राम. नाउ नंबर ऑफ मोल्स, अपना फॉर्मूला क्या बेटा? N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, याद है? तो स्मॉल m यानी मास गिवन 69.9 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास कर दो 55.85. सो मोल्स इज 1.25. करेक्ट. सेकेंड वन, mass given 30.1 divided by 16 small m upon capital M is equal to 1.88. इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 1.25. So divide the number of moles by smallest number. इसी तरह से तुम टेबल बना के करो या डायरेक्ट भी करोगे तो भी चलेगा, बट मेथड तो सेम ही रहेगी. So 1.25 divided by 1.25. ठीक है, छोटा, इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 1.25. So is equal to 1. Then you will divide 1.88 divided by 1.25. So it will give you 1.504. Now what we see, children,
यहाँ 1 है, यहाँ 1.5, तो फ्रैक्शन में तो फॉर्मूला बन नहीं सकता है. तो टेक सच ए नंबर, मल्टीप्लाई विथ सच ए नंबर सो दैट बोथ ऑफ देम आर हैप्पी और गिव द होल नंबर. ठीक है. तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी 2 से करूं, तो व्हाट विल बी देयर, हियर इट विल बिकम 2 एंड हियर इट विल बिकम 3, क्योंकि फ्रैक्शन में वी डू नॉट राइट. तो टेक सच ए सुटेबल नंबर, राइट. स्मॉलेस्ट सुटेबल नंबर लेना, ऐसा भी नहीं कि कोई नंबर तो कोई भी हो सकता है, राइट. तो 1 को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो FE कितना बन गया, 2. एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3, तो O क्या बन गया, 3. सो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज नाउ Fe2O3. क्लियर. नाउ वी विल फाइंड empirical formula mass. Empirical formula mass, right. So what I will do, Fe2O3. तो Fe क्या है, 55.85 into 2 plus 16 into 3. So let me multiply. 55.85 into 2 is equal to 111.7. Sorry, 111.7 plus 16 3s are 48. So this plus 48 is equal to 159.7. ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया, राइट. अब इसको व्हाट वी सी, एन फाइंड करना है. सो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. So what I will do, what is mass given, 159.69, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, it is given in the question, divided by 159.7, so it will be approx 1 only, correct. दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, जो भी फिगर आएगा that is 1 only. So what we will do, therefore molecular formula will be, molecular formula is equal to empirical formula into स्मॉल n, जो n की वैल्यू आएगी. तो हमारी empirical formula क्या है बेटा, Fe2O3. इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर विल बी Fe2O3 ओनली. ओके. सो इन दिस वे, yesterday only someone asked me कि क्या molecular formula और empirical formula सेम हो सकता है. Yes, when n is 1. करेक्ट. तो मैं PDF भी भेज रही हूँ, गो थ्रू द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 1.10 अपनी एक्सरसाइज का ही है. इन 3 moles ऑफ इथेन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम. इथेन क्या है, C2H6. सो इन 1 mole इथेन कितने कार्बन मोल्स हैं, 2 moles of carbon, 2 moles of carbon. Therefore in 3 moles ethane, 2 3 is 6 moles carbon. Easy. Then how to calculate the number moles of hydrogen atom in same ethane. So in 1 mole इथेन कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं बेटा, S6 है ना, तो 6 moles हाइड्रोजन. देयरफॉर इन 3 moles, हाउ मच, 3 into 6 is equal to 18 moles of hydrogen. थर्ड वन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन. अब मॉलिक्यूल्स फाइंड करना, ध्यान रखना, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए एवोगाड्रो नंबर की जरूरत पड़ेगी. So in 1 mole ethane 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of ethane. मॉलिक्यूल इतने हो जाएंगे, ठीक है. Therefore पढ़ा है ना हमने, 1 mole में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं. Therefore number of molecules of ethane, therefore
3 मोल्स में, क्योंकि हमें 3 मोल्स में कैलकुलेट करना है. So is equal to 3 into 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. So 6 3 ja 3 2 ja 6, 3 2 ja 6, 3 0 ja 0, 3 6 ja 18. So 18.066 into 10 raised to power 23 molecules. इसको अगर अपन फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद पॉइंट डालें तो 1.8066 इंटू, अगर डेसिमल को लेफ्ट ले जाते हैं तो पावर प्लस होता है. सो 1 डिजिट ले गए तो 24 मॉलिक्यूल्स. अंडरस्टूड? सो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. All the questions are very easy. Now you have to try by yourself also, beta. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3. The level of contamination was 15 ppm. ठीक है. ppm का क्या मीनिंग होता है? पार्ट्स, यहाँ देखना ध्यान से, है ना. तो कितना हुआ? पार्ट्स पर मिलियन. मिलियन यानी 10⁻⁶, यानी 10⁻⁶ में 15 पार्ट्स हैं. फाइन. तो अपने को क्या निकालना है इसका? फाइन. एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास. परसेंट यानी क्या? 100. पीपीएम का मीनिंग सबको समझ में आ गया? पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में 15 पार्ट्स, यानी 10⁻⁶ में 15 पार्ट्स. देयरफॉर इन 100 हाउ मच? So 100 into 15 divided by 10⁻⁶. करेक्ट. तो 20 कैंसल हो जाएगा. तो इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻, अगर दो नीचे 10⁻4 है तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, इसको ऐसा करें 1.5 इंटू 10⁻, पॉइंट इधर ले गए यानी प्लस करना है. सो -4 + 1 यानी 3. समझ में आया सबको? सो -3. जब पॉइंट को लेफ्ट ले जाते हैं तो प्लस करते हैं पावर में. सो 1.5 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया इसका परसेंट, क्योंकि परसेंट निकालना है. नाउ क्वेश्चन इज डिटरमाइन मोलैलिटी. सेम क्वेश्चन. डिटरमाइन मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल. मोलैलिटी फाइंड करना है. सो टू फाइंड द मोलैलिटी, फर्स्ट व्हाट वी नीड? क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा. मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म. सो कार्बन इज 12 प्लस हाइड्रोजन इज 1 प्लस 35.5 क्लोरीन इंटू 3. ठीक है. वेन यू विल कैलकुलेट इट विल बिकम 35.5 into 3 is equal to 106.5 plus 13, 12 plus 1 is equal to 119.5 ग्राम पर मोल. ये इसका मॉलिक्यूलर मास है. तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है बेटा? मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ solute divided by its का molecular mass into mass of solvent in kg. याद आया सबको? mass of solvent in kg. correct. so mass of solute given is क्लोरोफॉर्म का कितना दे रखा है? ये 1.5 into 10⁻⁻3. ओके. नाउ मास ऑफ सॉल्यूट, हाउ टू कैलकुलेट? ये तो परसेंट दे रखा है ना. दिस इज परसेंट. परसेंट यानी 100 में. तो लिखेंगे यहाँ पे इन 100 ग्राम 1.5 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम क्लोरोफॉर्म. देयरफॉर इन 1000 ग्राम मोलैलिटी यानी 1000 में. सो इन 1000 ग्राम हाउ मच? So 1000 into 1.5 into 10⁻⁻3 divided by 100. 20 कैंसिल कर दो. So it will become
1.5 into 10 raised to power minus 2 gram. Correct? When you will calculate, it will be minus 2 gram. Now this we have got. So therefore, molality is equal to solute लिख दो 1.5 into 10 raised to power minus 2 divided by molar mass लिख दो 119.5 into solvent kg में कितना है 1. So when you will calculate, it will become 1.25 into 10 raised to power minus 4 मोलाल. स्मॉल मोलालिटी को स्मॉल m लिखते हैं. ठीक है, मोलालिटी. जो भी बच्चों को ये प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आस्क मी, फील फ्री एंड आस्क मी, देन मैं उनके सेपरेट व्हाट्सएप पे उनको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, जिनको भी प्लस माइनस और डेसिमल पॉइंट्स की प्रॉब्लम हो रही है. ओके बेटा, ओके, चलो, थैंक यू.